Jesus saves the sick. यीशु बीमारों को बचाता है। Jesus saves the sick यीशु बीमारों को बचाता है from their sicknesses. उनकी बीमारियों से। James 5 and verse 15 says, याकूब 5 और उसका 15 पद कहता the है, prayer of faith shall save the sick. विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच The जाएगा। Lord will raise him up. प्रभु उसे उठा खड़ा करेगा। If he has sinned, he will be forgiven. यदि उसने पाप किया हो तो वो क्षमा किया जाएगा। If the sickness has come because of sin, God will forgive that person and save that sick person. यदि वो बीमारी पाप के कारण आई है तो परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमा करेगा और उसे बचाएगा। Jesus not only took our sins upon himself, यीशु ने केवल हमारे पापों को ही अपने ऊपर नहीं उठाया, Jesus took our sicknesses also upon his body. बल्कि यीशु ने हमारे रोगों को भी अपने ऊपर उठा लिया। In Matthew 8 and verse 17, मत्ती 8 अध्याय उसके 17 पद the में Bible says Jesus took our sicknesses and carried our weaknesses. यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। He said, let every sickness come upon me. उसने कहा हर बीमारी मेरे ऊपर आ जाए। Let everybody's sickness come upon my body. Let my body be full of wounds. उसने कहा सबकी बीमारी मेरे शरीर पर आ जाए और मेरा शरीर घायल हो जाए। His body was beaten, scourged, and was full of bruises. उसके शरीर को मारा गया, नोचा गया और पूरी तरह से घायल किया गया। On the cross, his hands were nailed. क्रूस पर उसके हाथों में कील ठोके गए, His legs were nailed. उसके पैरों में कील His ठोके गए, head had a crown of thorns. उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया His गया, side was pierced. उसकी पसली में भाला मारा गया The whole body was whipped by the Roman soldiers. और रोमी सैनिकों ने उसके पूरे शरीर पर कोड़े बरसाए। Why? क्यों? To understand your agony. आपके कष्ट को समझने के To लिए, carry your sickness. आपकी बीमारी को उठाने के To लिए, carry your weakness. आपकी दुर्बलता को उठाने के लिए। Jesus suffered on the cross. यीशु ने क्रूस पर दुख सहा And the Bible says in Isaiah 53 and verse 5, और ये शायद 53 उसके 5 पद में बाइबल कहती by है, the stripes of Jesus we are healed. यीशु के मार खाने से हम चंगे किए गए, By the wounds of Jesus we are healed. यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे किए गए। If you read John 20 and verse 25, यदि आप यूहन्ना 20 उसके 25 पद को पढ़ें you see the resurrected Jesus. और वहां आप जी उठे यीशु को देखते हैं, And even after resurrection, he had his wounds on his body. और जी उठने के बाद भी उसके शरीर में घावों के निशान थे। Why? क्यों? To heal your sickness. आपकी बीमारी को चंगा करने के Even लिए। today, he will lay his nail-pierced hands upon you, आज भी वो अपने छेदे हुए हाथ आपके ऊपर रखेगा and he will heal your sickness. और आपकी बीमारी को चंगा He करेगा। will drive the devils, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा and especially the wound on his side. और विशेषकर उसकी पसली का वो घाव It is to heal the relationship in the families. परिवारों में आपसी संबंधों को ठीक करने के लिए है। The Bible says in Genesis उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल बताती है that God took the rib of Adam out of his side and he created Eve. कि परमेश्वर ने आदम की एक पसली को निकालकर उससे हवा को रचा And so, और इसलिए to bring healing between the husband and the wife, Jesus gave his side to be wounded according to John 19:34. यूहन्ना 19 उसके 34 पद के अनुसार यीशु ने पति पत्नी के बीच के संबंध को चंगा करने के लिए अपनी पसली को घायल होने दिया। Tonight when you cry, Lord, my relationship with my husband is full of sickness, full of agony, Jesus will come and heal your relationship by the wound in his side. आज रात जब आप पुकारेंगे, प्रभु मेरे पति के साथ मेरा संबंध बीमारी से भरा है, कष्ट से भरा है, तो यीशु आकर अपनी पसली के उस घाव के द्वारा आपके संबंध को ठीक करेगा And you will have joy in your relationship. और आपके संबंध में आनंद होगा, You will have healing in your body. आपके शरीर में चंगाई होगी। Listen to God right now इसी समय परमेश्वर की सुने and tell him, Lord, और उससे कहें, प्रभु heal me, Lord. मुझे चंगा करें प्रभु। Cry out to God right now. इसी समय परमेश्वर को पुकारें, Tell him, Jesus, heal me. उससे कहें यीशु मुझे चंगा Now करें। he will heal you. इसी समय वो आपको चंगा करेगा। Paul Dinakaran is not the healer. चंगा करने वाला पौल दिनाकरन नहीं We are है, just mud and clay. हम केवल धूल और मिट्टी हैं। We just come to pray along with you to Jesus. हम केवल आपके साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना करने के लिए आते Jesus is हैं। by your side. यीशु आपके पास है, Just call the name of बस Jesus. यीशु के नाम को पुकारें। Wherever you are, आप जहां पर भी हैं, he will heal all your sickness because he has suffered on the cross for you.
वो आपकी सारी बीमारी को चंगा करेगा क्योंकि उसने क्रूस पर आपके लिए दुख उठाया है। In Mark chapter 1 and verse 40 to 42. और मरकुस 1 अध्याय उसके 40 से 42 पदों में A leper cried out to Jesus. एक कोढ़ी ने यीशु को पुकार कर कहा, Everybody is throwing me out. सब लोग मुझे दूर भगाते हैं। I have to cover my beard and I have to cry to the people saying, don't come near me. I am a leper. I am unclean. मुझे अपने होठों को ढांप कर और पुकार कर लोगों से कहना पड़ता है, मेरे पास मत आओ, मैं एक कोढ़ी हूं, मैं अशुद्ध हूं। Are you living in shame because of your sickness? क्या आप अपनी बीमारी के कारण शर्मिंदगी में जी रहे Some हैं? people come to me for prayer. कुछ लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं They say, brother, I have HIV. और वो कहते हैं, भाई मुझे HIV है। They will whisper in my ears वो मेरे कान में कहते and they हैं will cry. और वो रोते हैं, They'll say, I can't say this to anybody. कहते हैं, भाई मैं ये किसी और को नहीं बता Nobody सकता, wants me. कोई मुझे नहीं चाहता। Brother, I have tuberculosis. भाई मुझे तपेदिक का रोग है, Nobody comes near me. कोई मेरे पास नहीं आता। Maybe you are in that position. शायद आप भी ऐसी दशा में Tonight हैं, Jesus will heal you. लेकिन आज रात यीशु आपको चंगा That करेगा। leper cried, उस कोढ़ी ने पुकारा but Jesus went to him. और यीशु उसके पास And गया he said, if you will, Lord Jesus, I will be cleansed. और उसने कहा, प्रभु यीशु यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो But सकता Jesus हूँ। touched him. और यीशु ने उसे छुआ, He touched him. उसने उसे छुआ And he said, I will be thou clean. और उसने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। And the man was totally cleansed. और वो व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो गया, 100% well. 100% ठीक हो गया, New skin. नई त्वचा मिल That's गई। the love of Jesus. यह है यीशु का प्रेम, That's the love of Jesus. यह है यीशु का The प्रेम। Bible says in Luke 1:32 and 33. लूका 1 उसके 32 और 33 पद में बाइबल बताती है, After sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon possessed. जब शाम हुई तो लोग सब प्रकार के रोगियों को और दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्तियों को उसके पास The लेकर आए। whole town gathered at the door. पूरा शहर फाटक के पास इकट्ठा हो गया Jesus healed many. और यीशु ने बहुतों को चंगा किया, Many who had diseases. बहुत से बीमारों को चंगा He किया also drove out many demons. और उसने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। Now Jesus will heal all of you. अब यीशु आप सबको चंगा He करेगा, will drive devils out of all of you. वो आप सब में से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। How many of you believe Jesus will heal you tonight? आप में से कितनों को यह विश्वास है कि आज रात यीशु आपको चंगा Show करेगा? your hands to Jesus. अपने हाथ यीशु को दिखाएं Tell him, I believe you, Lord Jesus. और उससे कहें, प्रभु यीशु मुझे आप पर विश्वास है, Heal me now. अब मुझे चंगा करें, Heal me अब now. मुझे चंगा करें। God bless you. परमेश्वर आपको We're आशीष going to दे। listen to one more testimony. हम एक और गवाही को सुनेंगे Then we are going to pray for God to touch us and supply all our और needs. फिर हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबको छुए और हमारी सब जरूरतों को पूरा Thank you, करें। Jesus. Tell us your name, sister. बहन अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रभा अजय सालवे है। मैं और मेरे पति यहाँ पर आए हैं दोनों। 2012 में मेरा एक्सीडेंट, मैं और मेरे पति 2 व्हीलर पे जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हुआ कि हम दोनों भी उसमें घायल हुए थे। मेरे नाक में बहुत चोट आया था, सर में चोट आई थी, कान को भी लगा था और हम लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। ऐसे हम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में हमारा इलाज कराया, पर लेकिन इलाज करते रहे। जब तक मेरी दवाई चालू थी तब तक मुझे अच्छा लगता था, पर दवाई बंद करने के बाद में मैं बहुत बुरी तरह से मुझे तकलीफ होती थी। मैं जब सवेरे उठती थी तो मुझे चक्कर आते थे, मैं बैठ नहीं सकती थी। 1 साल मैंने ऐसा गुजारा। 2013 में जब भाई दिनाकरण की मीटिंग औरंगाबाद में हुई, मैं फिर प्रभु से प्रार्थना कर ली, प्रभु मुझे चंगाई दो। आज मेरा पूरा विश्वास है आज तुम मुझे चंगाई दोगे। उतने में भाई ने मेरा नाम लिया और कहा कि सुप्रभा प्रभु आपका स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपको चंगा दे रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Suprabha. सुप्रभात। God touched you. देव तुला स्पर्श करत Your ear आहे। is being healed right now. तुझे कान एकदम बरे होत आहेत येशूच्या Your नावात। brain is being healed in Jesus' name. तुमच्या मेंदूला आरोग्य मिळत आहे येशूच्या नावात। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. मेरा
रहा है। उसी समय मेरे शरीर में एक बिजली चमक गई और मुझे प्रभु का स्पर्श मैंने महसूस कर दिया। फिर मैं ये चेक करने लगी, सच में प्रभु ने मुझे चंगाई दी। मैंने सर में हाथ लगाया, कान को हाथ लगाया, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। भाई ने किस तरह प्रभु ने उनको मेरा नाम बताया और उन्होंने मेरा नाम लिया। उसी दिन से मैं आज तक बहुत आशीषित, आज तक मुझे कुछ तकलीफ नहीं। Jesus is so real. यीशु किती खरा खुरा है पहा। Now Jesus will heal all of you. अब यीशु आप सबको चंगा He करेगा। will drive devils out of all of you. वो आप सब में से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। How many of you believe Jesus will heal you tonight? आप में से कितनों को यह विश्वास है कि आज रात यीशु आपको चंगा Show करेगा? your hands to Jesus. अपने हाथ यीशु को दिखाएं Tell him, I believe you, Lord Jesus. और उससे कहें, प्रभु यीशु मुझे आप पर विश्वास Heal है, me now. अब मुझे चंगा करें, Heal me अब now. मुझे चंगा करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, पिता, whoever has raised their hand, जिन्होंने भी अपने हाथों को उठाया है, they have believed in you, Lord. उन्होंने आप में विश्वास किया They है have प्रभु। believed in you, Lord. उन्होंने आप में विश्वास किया है प्रभु। Lord Jesus, प्रभु यीशु, remember how you suffered on the cross for them. स्मरण करें कि आपने कैसे उनके लिए क्रूस पर दुख उठाया। Now lay your hands upon them and heal them, Lord. अब उन पर अपने हाथ रखकर उन्हें चंगा करें प्रभु। Heal the goiters. गले की गांठ को ठीक कर दें प्रभु। Heal the thyroid. थायराइड को ठीक कर दें प्रभु। Heal the blood diseases. खून के रोगों को चंगा कर दें। Heal the deficiencies in their bodies. उनके शरीरों में जो कमी है उसे ठीक कर दें। Heal the allergies. सब तरह की एलर्जी ठीक कर दें प्रभु। Heal the pains. दर्द ठीक कर दें प्रभु। Heal the deformities. विकृतियां ठीक कर दें प्रभु। Heal the cancers. कैंसर ठीक कर दें प्रभु। Heal the skin diseases. त्वचा के रोग ठीक कर दें प्रभु। Heal the TB. टीबी ठीक कर दें प्रभु। Heal the tumors. रसौलियां ठीक कर दें प्रभु। Heal the liver जिगर की diseases. बीमारियां ठीक कर दें प्रभु। Heal the kidneys, गुर्दे Lord. ठीक कर दें प्रभु। Heal the organs which reproduce. संतान उत्पन्न करने वाले अंगों को चंगा कर दें प्रभु। Remove the cysts, Lord. गांठें हटा दें प्रभु। Remove the cysts right इसी now. समय गांठों को हटा दें प्रभु। And every other और growth. किसी भी प्रकार की दूसरी बढ़ोतरी Let it come यह निकल out. जाए, Let it come यह निकल out. जाए, In Jesus' यीशु के name. नाम से निकल जाए। Let everybody be healed in Jesus' name. प्रत्येक जन यीशु के नाम से चंगा हो जाए। Let their eyes see उनकी now. आंखें अब देखने लग जाएं, Ears hear कान now. सुनने लग जाएं, Mouth speak now. बोलने लग जाए, Let them breathe वो normally. सामान्य रीति से सांस लेने Let पाए, their heart be उनके दिल well. ठीक हो जाएं, Let their spine be उनकी रीढ़ healed. की हड्डियां ठीक हो जाएं, Every other और बाकी organ. के सभी अंग Receive the life-giving power of Jesus now. इसी समय यीशु की जीवनदायी सामर्थ्य को प्राप्त कर लें And be और चंगे healed. हो जाएं In Jesus' यीशु के name. नाम में। Yes, हाँ Lord. प्रभु, Thank you for going to thy children and healing them by अपने your बच्चों love, के पास Lord. जाकर अपने प्रेम के द्वारा उन्हें चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, take the little children in your प्रभु arms. छोटे बच्चों को अपनी बाहों में ले, Lay your hands upon अपने them हाथ उन पर रखें and heal them, और उन्हें Lord. चंगा करें प्रभु। Heal them, उन्हें चंगा Lord. करें प्रभु। Heal the brain. दिमाग चंगे कर दें, Heal the brain. दिमाग चंगे कर दें। Heal the nature of the young people now. नौजवानों के स्वभाव इसी समय चंगे हो जाएं, Let them be वो healed चंगाई को पाएं, in their body, अपने शरीरों में, in their souls, अपने प्राणों में, in their अपने mind, मनों में, in their spirit. अपनी आत्माओं में। Lord Jesus, heal them by your wounds, प्रभु Lord. यीशु ने अपने घावों से चंगा कर दे प्रभु। Father, पिता, heal the relationship between the husband and the wife. पति और पत्नी के बीच के संबंध को ठीक करें प्रभु। Heal, ठीक Lord. करें प्रभु, Heal, ठीक करें Lord. प्रभु। Let the demons leave in Jesus' name and let love come between them. यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाएं और उनके बीच में प्रेम आ जाए, By the power of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। Lord प्रभु Jesus, यीशु, by the wound on your side, heal every relationship between the husband and the wife. अपनी पसली के घाव के द्वारा पति और पत्नी के बीच के संबंध को ठीक कर दें प्रभु।
Heal them now. इसी समय ठीक करें। Thank you for doing it, ऐसा Lord. करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Just believe. बस विश्वास करें। Just believe. बस विश्वास करें। Clap your hands and praise the ताली Lord. बजाकर प्रभु की स्तुति करें। Miracles are happening right इसी समय now. चमत्कार हो रहे हैं। Miracles are happening right इसी समय now. चमत्कार हो रहे हैं। Just praise the बस प्रभु की Lord. स्तुति करें। Do what you could not do जो आप before. पहले नहीं कर पाते थे अब वो करें। Mighty healings the Lord Jesus is doing by the Holy प्रभु Spirit. यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य चंगाई को दे रहा है। Just give him all the बस सारी glory. महिमा उसको दे। Believe. विश्वास करें। Believe. विश्वास करें। विश्वास करें। Believe. विश्वास करें। Jesus our Lord. यीशु हमारा प्रभु है। He is with वो you. आपके साथ है। He is in वो you. आपके अंदर है। He is creating brand new वो नए organs. अंगों की सृजना कर रहा है। We are grateful, हम Lord. आभारी हैं प्रभु। We are हम grateful. आभारी हैं। We are हम grateful. आभारी हैं। Let everybody be free आज tonight. रात सब आजाद हो जाएं। Thank you for delivering everybody, सबको Lord. छुटकारा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। Everybody. प्रत्येक जन को, Everybody. प्रत्येक जन को We give you all the हम glory. सारी महिमा आपको देते हैं। All the सारी glory. महिमा आपको देते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। If you read the Bible, यदि आप बाइबल को in पढ़ें Matthew 1:21, तो मत्ती 1 उसके 21 पद you में know what is the meaning of the name of Jesus is? तो आप जानते हैं यीशु नाम का अर्थ क्या है? Jesus means यीशु नाम का अर्थ the है one who will deliver his people and save them from all their sins. वो जो अपने लोगों को छुटकारा देगा और उन्हें उनके सब पापों से बचाएगा। Jesus who will save us from all our sins. यीशु जो हमें हमारे सब पापों से बचाएगा। Yes, Jesus came to save us. हाँ, यीशु हमें बचाने के लिए आया। To save us. हमें बचाने के लिए। When I was a young boy, जब मैं एक नौजवान लड़का before था, getting married, विवाह से पहले maybe 18 years old, शायद 18 साल का था, one day I was with my sister in the car and I was driving the car to the airport. एक दिन मैं अपनी बहन के साथ एयरपोर्ट जा रहा था और मैं कार को चला रहा था And I was driving very fast और मैं बहुत तेज चला रहा था because the time for my father's flight was very near. I had to reach the airport and receive him on time. क्योंकि जल्दी ही मेरे पिताजी की फ्लाइट आने वाली थी और उन्हें रिसीव करने के लिए मैं समय पर वहां पहुंचना And it चाहता was था। a dark night. रात का समय था और बहुत अंधेरा था। That time Chennai did not have many street lights. उस समय चेन्नई की सड़कों पर ज्यादा लाइटें नहीं होती So in थी। that dark night on a dark road, तो उस अंधेरी रात में अंधेरे रास्ते पर I was driving so fast मैं बहुत तेज चला रहा था and suddenly I saw roadblocks. और अचानक मैंने देखा कि आगे रास्ता बंद था। They had put black tar tins on a black tarred road on a dark night. उन्होंने रास्ते को बंद करने के लिए काली रात में काली सड़क पर काले तारकोल के ड्रम रखे At हुए the थे last moment I pressed the brake और बिल्कुल पास जाकर मैंने ब्रेक लगाई and the car screeched and it was skidding towards the black tar tins. और टायरों की जोर की आवाज के साथ कार उन तारकोल के ड्रमों की ओर फिसलने लगी। I thought I'm going to hit those tar tins. मुझे लगा कि कार उन ड्रमों के साथ टकरा जाएगी, But then I realized there were policemen standing there. लेकिन फिर मैंने देखा कि वहां कुछ पुलिस वाले खड़े थे And I thought 4 policemen also will be finished today. और मैंने सोचा वो चारों पुलिस वाले भी नीचे आ जाएंगे And the car skid straight towards them. और कार उनकी ओर फिसलती चली गई At the last moment, the 4 policemen jumped and ran out of the street. और बिल्कुल अंतिम क्षणों में वो पुलिस वाले वहां से दौड़कर हट गए। But thank God the car went and stood just in front of the tar tins. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कार बिल्कुल उन तारकोल के ड्रमों के पास जाकर रुक गई And my heart was beating. और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। That's the right thing. Correct translation. आपने बिल्कुल सही अनुवाद किया। And the policemen came running. और पुलिस वाले दौड़ते हुए आए। They said, "Who are you?" उन्होंने कहा तू कौन है? I thought I'll be finished. मैंने सोचा आज तो मैं काम से गया। I jumped before मैं them. कार से निकला और उनके सामने आया। I said, मैंने कहा It's a dark ये night. काली रात है, Dark road. काली सड़क है You put black tins as a और roadblock. रास्ता बंद करने के लिए आपने काले ड्रम रखे। No light. कोई लाइट नहीं है, How can you expect me to see? तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये मुझे दिखाई देते? They said, but you are very वो तो fast. ठीक है, लेकिन तुम बहुत तेज चला रहे We थे, are going to charge you. आपको इसका जुर्माना देना होगा। But then the man लेकिन asked, उनमें से एक ने पूछा Who are you? आप कौन हैं? Then I got a wisdom that और time. उसी समय मेरी बुद्धि ने काम किया। I said, I am brother Dinakaran's son. मैंने कहा मैं भाई दिनाकरण का बेटा हूँ।
He said, Brother Dinakaran who preaches, उन्होंने कहा वो भाई दिनकरन जो प्रचार करते हैं, Brother Dinakaran who prays for the people. भाई दिनकरन जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। I said, yes, yes, मैंने yes. कहा हाँ 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 वही। But then they said, लेकिन फिर उन्होंने कहा your father is praying to save our lives, but you are driving to kill our lives. आपके पिता हमारी जान बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हमारी जान लेने के लिए इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे। But then they और said, फिर उन्होंने कहा because of your father's name, we are leaving you. आपके पिता के नाम के कारण हम आपको छोड़ रहे हैं। You are saved because of your father's name. अपने पिता के नाम के कारण आप आज बच गए हैं। I said, praise the और Lord. मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो। But today my father is gone. लेकिन आज मेरे पिताजी नहीं हैं, He has passed away from the earth. वो धरती से चले गए हैं। My father cannot save me now. मेरे पिताजी अब मुझे नहीं बचा सकते, But there is one who can still save me. लेकिन एक है जो अभी भी मुझे बचा सकता है। And there is one who can still save एक you. है जो अभी भी आपको बचा सकता है, That's your heavenly father, Jesus और वो Christ. है आपका स्वर्गीय पिता यीशु मसीह। He will never die. वो कभी नहीं मरेगा। Jesus said, I was dead यीशु ने once. कहा मैं एक बार मरा, For you I gave my life. तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान दी। For you to live I gave my life, my child. तुम्हें जीवन देने के लिए मैंने अपनी जान दी मेरे बच्चे। But I rose up from the dead. लेकिन फिर मैं मृतकों में से जी उठा, I am alive. और अब मैं जीवित हूँ। I am मैं alive. जीवित हूँ। I am मैं जीवित alive. हूँ। I am मैं जीवित alive. हूँ। I, Jesus, am मैं alive. यीशु जीवित हूँ। Call my मेरे name. नाम को पुकारो, Ask anything in my मेरे name. नाम से जो चाहो मांगो। I am with you to rescue you. मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। I am with you to save you. मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। Let not your heart be troubled, my precious, precious brothers and मेरे sisters. प्रिय भाइयों बहनों, आपका हृदय व्याकुल ना हो। You don't need anybody in this world. इस संसार में आपको और किसी की जरूरत नहीं है। You have your heavenly Father to love आपको you. प्यार करने के लिए आपका स्वर्गीय पिता आपके पास है। He will make everybody to love you in the world. वही संसार में सबके हृदय में आपके प्रति प्रेम डालेगा। He will make you love everybody in the world. वही संसार में प्रत्येक के लिए आपके हृदय में You'll प्रेम be डालेगा। more than a conqueror. आप जयवंत से बढ़कर होंगे। Tonight Jesus is ready to come to आज you. रात यीशु आपके पास आने के लिए तैयार है। Will you open your क्या आप heart? अपने हृदय को खोलेंगे Tell him, और उससे Jesus, कहेंगे यीशु I need मुझे you. आप चाहिए, I need मुझे you. आप चाहिए, I need मुझे you. आप चाहिए, I need मुझे you. आप चाहिए। Come into my मेरे हृदय में heart. आए, Come into my मेरे family. परिवार में आए। Come, आए Lord. प्रभु, Come. आए प्रभु। As you call him, जब आप उसको पुकारेंगे, he will joyfully come into your वो heart. आनंद सहित आपके हृदय में You आएगा। don't need to run around to search for God. आपको परमेश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं He है। is coming to live in your heart. वो आपके हृदय में रहने के लिए आ रहा है। Your heart will be the home of God. आपका हृदय परमेश्वर का घर होगा। Open your heart to अपने Jesus, हृदय को यीशु के लिए and खोलेंगे He will come into you right तो now. वो इसी समय आपके अंदर आएगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो, Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। What are the things that He saves in our lives? हमारे जीवन में कौन सी बातों से वो हमें बचाता है? Whom does He save? वो किसे बचाता है? He saves the वो sinners. पापियों को बचाता है। He saves the वो sinners. पापियों को बचाता है। 1 Timothy 1:15, the Bible says, पहला तिमुथियुस 1:15 में बाइबल बताती है, Christ Jesus came to save sinners. मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। In Matthew 16 and verse 26, मत्ती 16 उसके 26 पद में the Bible says, बाइबल कहती है, What shall it profit a man if he gains the whole world but still loses his soul? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? The Lord saves those who wait for him. प्रभु उसकी बाट जोहने वालों को बचाता है। Proverbs 20 and verse 22 says, नीति वचन 20 उसका 22 पद कहता है, Those who wait for the Lord, he will save you. जो प्रभु की बाट जोहते हैं वो उन्हें छुड़ाता He है, will deliver you. वो आपको Maybe छुड़ाएगा। you've been waiting to be married for a long time. शायद आप लंबे समय से विवाह की You प्रतीक्षा में waited for हैं, a job for a long time. नौकरी के लिए लंबे समय से You प्रतीक्षा कर waited for रहे a हैं, child for a long time. बच्चे के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा You कर रहे waited हैं, for peace for a long time. शांति के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। Everyone who waits for God, for the Lord to come and help them, God will save them. जो प्रभु की बाट जोहते हैं कि वो आकर उनकी सहायता करे, प्रभु उन्हें छुड़ाएगा। Jesus went through that waiting period. यीशु उस प्रतीक्षा के समय से होकर गया। All through his life, अपने जीवन he was भर waiting to be resurrected.
वो जी उठने की प्रतीक्षा में था, but he had to go through death before resurrection. लेकिन जी उठने से पहले उसे मृत्यु में से So गुजरना था। according to Hebrews 5 and verse 7, इसलिए इब्रानियों 5 उसके 7 पद के Jesus अनुसार used to cry and cry and cry every day यीशु हर दिन निरंतर पुकारता था and say, "Oh God, save me from death. और कहता था, परमेश्वर मुझे इस मृत्यु से बचा, Save me from death." मुझे मृत्यु से He बचा। prayed much prayers and cried with a loud voice to be saved from death every day. वो प्रतिदिन ऊंची आवाज से पुकार कर प्रार्थना किया करता था कि मुझे इस मृत्यु से 3.5 बचा। years he cried. 3.5 साल तक उसने He पुकारा। knows you're waiting. वो आपकी प्रतीक्षा को How जानता you're है waiting and waiting and waiting for your miracle. कि कैसे आप अपने चमत्कार के लिए निरंतर प्रतीक्षा कर रहे And हैं, how you're crying every day saying, "Will my miracle come today? Will my job come today?" कि कैसे आप हर दिन पुकारते हैं कि क्या आज मैं अपने चमत्कार को पाऊंगा, क्या आज मुझे नौकरी On the मिलेगी। cross he cried, क्रूस पर से उसने my पुकारा, God, why have you forsaken me?" मेरे परमेश्वर तूने मुझे He क्यों त्याग knows दिया। how you cry today. वो जानता है आज आप कैसे पुकार But the रहे हैं। Bible says लेकिन बाइबल in कहती Acts है chapter 10 and verse 40, प्रेरितों के काम 10 अध्याय on उसके the 40 third पद day में, God came and raised him from his death. तीसरे दिन परमेश्वर ने उसे उसकी मृत्यु में से जिलाया। God will raise you also. परमेश्वर आपको भी जीवित The करेगा। same Jesus is here. वही यीशु यहाँ In उपस्थित है। Hebrews 7:25 the Bible says, इब्रानियों 7 के 25 पद में बाइबल कहती he है, cries for you. वो आपके लिए He पुकारता है, intercedes for you. वो आपके लिए मध्यस्थता करता है। And Romans 8:26 says, और रोमियो 8 के 26 पद में he बाइबल कहती comes है, into you वो आपके अंदर आता and he है prays through you. और आपके द्वारा प्रार्थना Today do करता you है। say, "I do not know how to pray. आज क्या आप कहते हैं, मुझे प्रार्थना I करना do नहीं not know आता, how to ask God"? मुझे परमेश्वर से मांगना नहीं आता। Tonight God says, आज रात "I परमेश्वर will कहता come to है, you in the form of a spirit, मैं आत्मा के रूप में तुम्हारे पास the आऊंगा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा the के रूप Spirit में, of Jesus. यीशु के आत्मा के He रूप will में come into you. वो आपके अंदर आएगा। Today He has washed your heart from all the sins. आज उसने आपके हृदय को सब पापों से धो दिया है। Your heart is empty today. आज आपका हृदय खाली है, But now Jesus will come and live in your heart लेकिन अब यीशु आकर आपके हृदय through में the रहेगा, Holy Spirit. पवित्र आत्मा Through के the द्वारा, Holy Spirit. पवित्र आत्मा के As द्वारा। you ask Him, जब आप उससे the मांगेंगे Spirit of Jesus will come into you. तो यीशु का आत्मा आपके अंदर No आएगा। more evil spirit. दुष्ट आत्मा नहीं No रहेगी, more crying spirit. रोने वाली आत्मा नहीं No more होगी, fearing spirit. डरने वाली आत्मा The नहीं Spirit होगी। of Jesus will fill you right now. यीशु का आत्मा इसी समय आपको भर He देगा। will help you in your weaknesses. आपकी दुर्बलता में वही आपकी And सहायता He will करेगा pray for you. और वही आपके लिए प्रार्थना He करेगा, will make you pray. वही आपसे प्रार्थना And करवाएगा He will make you pray God's will for you. और वो आपसे परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना God's करवाएगा will come to pass. और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। Isaiah 40 and verse 30 and 31 says, यशायाह 40 उसका 30 और 31 पद कहता है, "Those who wait for the Lord will rise up with wings, यहोवा की बाट जोहने वाले पंखों के साथ उड़ेंगे, with new strength. नए बल के साथ They will rise up to great heights." वो ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। God is going to give you excellent jobs. परमेश्वर आपको उत्तम नौकरियां देने जा रहा He'll give है, you excellent partners. आपको उत्तम जीवन साथी देने जा रहा है, He will celebrate your marriage. वो आपके विवाह का जश्न मनाएगा, He will honor you with a golden business. वो आपको स्वर्णिम कारोबार देकर आदर देगा, He will prove His power in your life. वो आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध He will करेगा, build a house for you. वो आपके लिए घर को बनाएगा, He will give you deliverance from your court cases. वो आपके मुकदमों से आपको छुटकारा देगा, He will do justice for you. वो आपके लिए न्याय करेगा And He will present you as God's servant before the people. और वो आपको परमेश्वर के दासों के रूप में लोगों के सामने लाएगा। How many of you believe it? आप में से कितनों को यह विश्वास है? You say, "Yes, Lord, I believe." आप कहें, हाँ प्रभु मुझे You will विश्वास lift है, me up to great heights in the world. आप मुझे इस संसार में महान ऊंचाइयों पर ले God जाएंगे। bless you. प्रभु आपको Let's आशीष दे। listen to this testimony and pray. आइए इस गवाही को सुनते हैं और फिर हम We प्रार्थना have करेंगे। Rohit, whom God blessed abundantly. भाई रोहित जिन्हें परमेश्वर ने भरपूरी के साथ आशीष दी। मैंने औरंगाबाद में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। उसके बाद मैं फेल हो गया। फेल होने के बाद मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि रोहित, तू एडमिशन वापस ले ले और घर चला जा, तेरी पढ़ने की इच्छा नहीं है और तू कभी पास नहीं होगा। उस समय मैं बहुत दुखी हो गया और उसके बाद औरंगाबाद में मराठवाड़ा प्रेयर फेस्टिवल था, उसमें डॉक्टर पॉल दिनाकरन आए हुए थे। वहाँ पर मैं गया और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु कृपया मेरा नाम ले।
और उसी समय डॉक्टर पॉल दिनाकरण इनकी ओर से मेरा नाम लिया गया। मेरा नाम इस तरह से लिया गया कि रोहित, तूने तेरा नाम पुकारे जाने के लिए बहुत प्रार्थना की है, परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर आ रहा है और परमेश्वर तुझे बुद्धि दे रहा है। उसके साथ ये भी कहा गया कि तू जवानी में एक अच्छा भविष्यद्वक्ता होगा। Rohit, लहान मुलगा रोहित, you prayed so much that God will call your name. तुम्ही कितीतरी प्रार्थना केली की प्रभू तुमचं नाव पुकारेल. God's wisdom is coming upon you, Rohit. देवाचं ज्ञान तुझ्यावर येत आहे रोहित. You will be a prophet in your young age itself. तुझे तरुण वयातच तू देवाचा संदेश टाक. उसके बाद मैंने मेरा बीएससी नर्सिंग पूरी तरह कंप्लीट किया और फाइनल ईयर में पूरे कॉलेज में मैं सेकेंड रैंक में आया। बाद में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अब मैं औरंगाबाद में ही एक कॉलेज में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हूँ। इस सेवा को गांव में और पूरे शहर में फैला रहे हैं। He was a total failure in his studies. ये अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से नाकाम थे। And people said, stop studying and leave studying. लोगों ने कहा कि तुम पढ़ाई करना बंद ही कर दो। How correctly God said, God's wisdom is coming upon you. परमेश्वर ने कितनी सटीकता के साथ कहा कि उसकी बुद्धि इन पर उतर रही है। How shall a man save his soul even if he gains the whole world? यदि मनुष्य सारे जगत को भी कमा ले तो अपने प्राण को कैसे बचाएगा? There was a great famous actress in India, भारत में एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेत्री हुई and she was so popular and loved by millions in this nation. और वो बहुत लोकप्रिय थी और देश के लाखों लोग उससे प्रेम Very करते थे। glamorous. बहुत ग्लैमरस थी, She was earning crores of rupees. करोड़ों रुपए कमा रही She थी got the national award, और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला and she had a beautiful daughter. और उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी। The daughter grew up. वो बेटी बड़ी हुई, Everything was perfect. सब कुछ बिल्कुल सही था। But then she fell in love with another man who was an actor. और फिर यह अभिनेत्री एक व्यक्ति से प्रेम करने लगी जो कि एक अभिनेता था। He was a married man. वो शादीशुदा था, But she never got to him. लेकिन यह उसे कभी हासिल नहीं कर पाई। He rejected her. उसने इसे अस्वीकार कर दिया, Her heart broke. उसका दिल टूट गया She got into drugs. और वो नशे करने लगी And she struggled in life. और जीवन में संघर्ष करने लगी। The daughter grew up, और बेटी बड़ी हो गई, got married. उसका विवाह हो गया And because of the mother's acts, she left the home. और अपनी माँ की हरकतों के कारण वो घर छोड़कर चली गई। This broke her more इससे वो और ज्यादा टूट गई and suffered so much. और बहुत दुखी हो गई। Loneliness killed her. अकेलेपन ने उसे मार डाला। One side she was so adored by millions of people. एक तरफ तो लाखों लोग उससे इतना प्रेम करते थे The other side she was in despair. और दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा निराश थी, All alone. बिल्कुल अकेली। Finally, और अंत में she could not bear to live this life. वो इस तरह के जीवन को सहन नहीं कर पाई। Drugs overpowered her नशे ने उसे जकड़ लिया and she died. और उसकी मौत हो गई। For 3 days, nobody searched for her. 3 दिन तक किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। Only on the 3rd day, the neighbors complained and they opened the door and found her dead. और तीसरे दिन जब पड़ोसियों ने दुर्गंध के कारण पुलिस को बुलाया तो उसे मृत पाया। That is the power of sin. यह है पाप की शक्ति। The Bible says in Romans 6:23, रोमियो 6:23 में बाइबल कहती है, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। But thanks be to God for the grace of God which gives us eternal life. लेकिन परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। Maybe your soul is dead because of your sin. शायद आपके पाप के कारण आपकी आत्मा भी मर चुकी है, Sinful actions. पाप के कामों के कारण। Because curses have come because of your sin. आपके पाप के कारण आपके जीवन में श्राप आ गए हैं। Jesus says, I am coming to you. यीशु कहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। The Bible says in Isaiah 53 and verse 5, यशायाह 53 उसके 5 पद में बाइबल बताती है, Jesus took all our sins upon himself on the cross. यीशु ने हमारे सब पापों को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया। When God saw that man was suffering, unable to come out of sin, जब परमेश्वर ने देखा कि आदमी कष्ट में है और अपने पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा the है, women were suffering in their sins, unable to save themselves. औरत अपने पाप के कष्ट में है और अपने आप को बचाने में असमर्थ है, God came down into this world in the form of a human being. तो परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पर आ गया। His name was Jesus. उसका नाम यीशु है And he came into the world और वो संसार में आया
And he suffered all the problems that you and I go through. और उन सब समस्याओं को सहा जो आप और मैं अपने जीवन में झेलते हैं। And finally, he had to destroy the death caused by sin through his own death. और अंत में उसने अपनी मृत्यु के द्वारा उस मृत्यु का नाश कर दिया जिसे पाप लेकर आता है। And only the pure blood of a human being can cleanse another person. और केवल किसी मनुष्य का शुद्ध लहू ही दूसरे मनुष्य को शुद्ध कर सकता है। Not the blood of bulls and goats. भेड़ बकरियों का लहू ऐसा नहीं कर सकता। And no man, no woman is holy in this world. और इस संसार में कोई आदमी कोई औरत पवित्र नहीं है। So God came in the form of a human being, perfect and holy with holy blood. और इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके उस सिद्ध और पवित्र लहू को लेकर इस धरती पर आया। And he went to the और वो cross, क्रूस पर चढ़ा, took all our sins upon him. हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिया। He said, these men should not be punished, these women should not be punished. उसने कहा इन पुरुषों को, इन स्त्रियों को दंड नहीं मिलना चाहिए। For them let me become a sacrifice. उनके लिए मैं एक बलिदान बनूंगा। For their sins let me be beaten, let me go through all the agony caused by sin. उनके निमित्त मैं मार खाऊंगा और पाप के कारण जो कष्ट उन पर आना है उस कष्ट को मैं अपने ऊपर सहूंगा। Jesus said, let me be punished. यीशु ने कहा मैं दंड सहूंगा, For no sin of mine, अपने किसी पाप के कारण नहीं, but for the sins of the whole world. परंतु पूरे संसार के पापों के कारण Let me be punished. मैं दंड सहूंगा, Let my blood be shed. मेरा लहू बहाया जाए। That's why he offered himself as a sacrifice for you and me to be forgiven of our sins. इसीलिए उसने अपने आप को भेंट के रूप में चढ़ा दिया ताकि आप और मैं पापों से क्षमा किए जाएं। Jesus, यीशु, Jesus, यीशु, God in flesh, देहधारी परमेश्वर, took all our sins upon himself. उसने हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले He लिया। suffered. उसने दुख उठाया, He paid the price. उसने कीमत चुकाई, He took the punishment. उसने दंड को ले लिया And he shed his blood. और उसने अपना लहू बहाया। Of course, he destroyed death. उसने अवश्य मृत्यु का नाश किया, The death which comes because of sin. वो मृत्यु जो पाप के कारण आती है। And he rose upon the third day. और तीसरे दिन वो जी उठा। Jesus rose up. यीशु जी उठा, He came up वो alive. जीवित हो गया Today he is alive. और आज वो जीवित है। You know why he is alive? जानते हैं वो जीवित क्यों है? To take every one of your sins out of you. आप में से प्रत्येक के अंदर से आपके पापों को निकालने If के you लिए। read Luke chapter 18 and verse 13, यदि आप लूका 18 उसके 13 पद को पढ़ें, a man who was a sinner cried to God एक पापी मनुष्य ने परमेश्वर को पुकारा and said, Oh God, I am a sinner, have mercy on me. और कहा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, Have mercy on me. मुझ पर दया कर, Have mercy on me. मुझ पर दया कर। As he cried, God said, This man has cried for his sins. I will forgive him. और जब उसने पुकारा, परमेश्वर ने कहा, इस मनुष्य ने अपने पापों के लिए मुझे पुकारा है, मैं उसे क्षमा करूंगा। Tonight you have to cry. आज रात आपको पुकारना होगा, Tonight you have to cry. आज आपको पुकारना होगा। Cry to Jesus, यीशु को पुकारें, who is here right now by your side. जो इस समय यहाँ पर आपके पास है, Right now by your side. इसी समय आपके पास है, And tell him, Oh और God, उससे कहें, हे I परमेश्वर, am a sinner. मैं एक पापी हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Cleanse me with your blood. मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, All sins. सब पापों से। Now Jesus will come. अब यीशु आएगा, As you saw him healing the people, now he will cleanse you of your sins. जैसे आपने उसे लोगों को चंगा करते हुए देखा, अब वो आपके पापों को शुद्ध करेगा। He'll remove the root of sin from you. आपके अंदर से पाप की जड़ को खत्म करेगा। He will remove the root of evil pleasures, root of the curse of sin from you. वो बुरी लालसाओं को और पाप की जड़ को आपके अंदर से खत्म करेगा, And all your past sins will be wiped away. और आपके पिछले सब पाप मिटा दिए जाएंगे। He will make you a new person. वो आपको एक नया मनुष्य बना देगा, New person. नया मनुष्य। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Now he will cleanse you. अब वो आपको शुद्ध करेगा। He is here right now. इस समय वो यहाँ उपस्थित है। Wherever you are, आप जहाँ पर भी हैं, tell him, उससे Jesus, कहें, यीशु cleanse me. मुझे शुद्ध करें, Wash me. मुझे धो दें, Wash my मेरे husband. पति को धो दें, Wash my children of their मेरे sins. बच्चों को उनके पापों से धो दें। Wash us with your blood, Lord हमें Jesus. अपने लहू से धो दें प्रभु यीशु।
Jesus, wash me of my sins with your blood. यीशु मुझे मेरे पापों से अपने लहू के द्वारा धो दें। Jesus, यीशु, I receive the forgiveness of sins from you. मैं आपसे अपने पापों की क्षमा को ग्रहण करता हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। From today, you're the child of Jesus. आज से आप यीशु के बच्चे हैं। You should never go back to sin again. अब आप कभी मुड़कर पाप की ओर ना जाएं। If you have been taking bribes, stop it. यदि अब तक आप घूस लेते रहे हैं तो अब इसे बंद कर दें। If you have been sinning in your body with your flesh, stop it. यदि आप अपने शरीर के द्वारा पाप करते आ रहे हैं तो अब इसे बंद कर दें। If you've been beating your children, beating your wife, stop it. यदि आप अपनी पत्नी या बच्चों को पीटते रहे हैं तो अब इसे बंद कर Throw दें। away alcohol. दारू को फेंक दें, Throw away cigarettes. सिगरेट को फेंक दें, Throw away drugs. नशे की दवाइयां फेंक दें, Throw away wrong things that you see in your phone. अपने फोन में जो गलत चीजें आप देखते हैं उन गलत चीजों को मिटा दें And turn to और Jesus. यीशु की ओर मुड़े। Turn to यीशु Jesus. की ओर मुड़े। God will protect you. परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, God will protect वो you. आपकी रक्षा करेगा। Psalm 72 and verse 13 भजन says, संहिता 72 उसका 13 पद कहता है, The Lord will take pity on the weak and save the needy from death. वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। Psalm 121 and verse 7 भजन says, संहिता 121 उसका 7 पद कहता है, The Lord will watch over your soul. प्रभु तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। He will keep you holy in this world, connected to वो इस Jesus. संसार में आपको पवित्र और यीशु से जोड़े रखेगा। And when you die, He will take you to heaven to live with Him forever. और जब आपकी मृत्यु होगी तो वो आपको स्वर्ग ले जाएगा ताकि आप अनंत काल तक उसके साथ रहें। Today you have become the child of Jesus. आज आप यीशु की संतान बन गए हैं, God in flesh. जो देहधारी परमेश्वर है। He will be with you to protect you. वो आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ रहेगा। Live a holy life with the help of Jesus. यीशु की सहायता से पवित्र जीवन बिताएं। I'm going to introduce to you a couple who had such a मैं blessing. एक दंपति को आपके सामने बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ऐसी ही आशीषों को पाया। Say your name and tell us what God did for you. मेरा नाम राजू यादव कसारे है। मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरी शादी 2006 साल में हुई। 2006 साल से मेरे जीवन में दुखों का पर्वत गिर पड़ा था और मैं मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने लगा और मैंने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया। जब उसे गर्भ ठहरा था तब मैंने उसे बहुत पीड़ा दी, मुक्कों से और लातों से मैंने उसे मारा और उसके साथ बहुत गलत व्यवहार मैंने किया। हर प्रकार की अलग अलग गालियाँ मैंने उसे दी और मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और फिर हमारी ये बात तलाक लेने तक पहुँच गई। हम दोनों का तलाक होने वाला था। मैं रो रहा था कि हमारा तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आगे क्या होगा ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचता रहा, रात भर मैं सोया नहीं और फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि औरंगाबाद में डॉक्टर पॉल दिनाकरन इनकी एक सभा है और तू वहाँ पर चल। और उस जगह पर डॉक्टर पॉल दिनाकरन इन्होंने मेरा नाम पुकारा और भविष्यवाणी की। Rajiv, राजीव, God touches you right now. परमेश्वर इसी समय आपको छू रहा है। In the relationship with your wife, you have sinned. अपनी पत्नी के साथ आपके संबंध में आपने पाप किया है। You have sinned against your wife and the relationship with her. आपने अपनी पत्नी के विरुद्ध और उसके साथ अपने संबंध में पाप किया You है। are repenting tonight. आज की रात आप पश्चाताप कर रहे हैं। Jesus transforms you and forgives you. यीशु आपको क्षमा कर रहा है और आपको बदल रहा है। ये शब्द मेरे कान पर पड़ते ही पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। उस जगह पर बिजली का झटका लगने जैसे मैं नीचे गिर पड़ा। उस जगह पर मैंने पश्चाताप किया और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि 2016 में मुझे BTH का प्रमाण पत्र मिला है और आज मैं औरंगाबाद में बिलीवर्स चर्च में सेवकाई कर रहा हूँ। How correctly God revealed His life. परमेश्वर ने कितनी स्पष्ट रीति से इनके जीवन को प्रकट किया। Today God has transformed them. आज परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला है And they are affectionate husband and wife and darling child. और ये आपस में प्रेम करने वाले पति पत्नी हैं और इनके साथ इनका एक प्यारा सा बच्चा है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, how many of you want Jesus to come into your heart tonight? आप में से कितने हैं जो चाहते हैं आज रात यीशु आपके हृदय में आए? Wonderful.
to see all your hands. आप सबके हाथ देखकर बहुत Raise it अच्छा high लगा। before God. प्रभु के सामने ने ऊंचा उठाएं। Now I'm going to pray अब मैं प्रार्थना करूंगा that God will answer your prayer to Him और परमेश्वर उसके समक्ष की जाने वाली आपकी प्रार्थना का and उत्तर He will देगा release you from your sins which have brought a curse in your family, in your और life. वो आपको आपके उन पापों से आजाद करेगा जो आपके और आपके परिवार के जीवन में श्रापों को लेकर आए हैं। Lord, hold on to the hand of each one here. प्रभु यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन के हाथ को थामे, Wash them with your blood, Lord उन्हें अपने Jesus. लहू से धो दें प्रभु यीशु, Wash them with your उन्हें अपने blood. लहू से धो दें। Let every sin and sinful addiction and curse leave them in Jesus' name. प्रत्येक पाप, पाप की आदत और प्रत्येक श्राप उन्हें यीशु के नाम में छोड़कर चला जाए। Let every sin come out. प्रत्येक पाप निकल जाए, Sinful nature leave in Jesus' पाप name. का स्वभाव यीशु के नाम से निकल जाए, Sinful addictions leave in Jesus' पाप की name. आदतें यीशु के नाम से निकल जाएं, The curses of sin leave in Jesus' पाप के name. श्राप यीशु के नाम से निकल जाएं। You demonic spirits bringing the sinful nature, I command you to leave their spirits in Jesus' पाप name. के स्वभाव को लाने वाली दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। Leave the families in Jesus' यीशु name. के नाम में परिवारों को छोड़कर चली जाओ, Especially in the relationship between the husband and the wife, whatever sinful relationships are there, whatever sins are there in their relationship, forgive them, Lord, and transform them to love each other. विशेषकर पति पत्नी के आपसी संबंध के बीच में यदि कोई और पाप के संबंध हैं, तो ऐसे पति पत्नियों को क्षमा कर दें और उन्हें बदल दें कि वो आपस में प्रेम करने लगे। Thank you, Lord, for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Lord, enter into their hearts. प्रभु उनके हृदयों में प्रवेश करें, Every heart, प्रत्येक हृदय में, every spirit, प्रत्येक आत्मा में, everyone's mind, प्रत्येक के मन में, everyone's body. प्रत्येक के शरीर Fill में their families उनके परिवारों को भर दे, with thy mighty Holy Spirit. अपने सामर्थी पवित्र आत्मा से भर Release दे, them from sin. उन्हें पाप से छुड़ा दे, Let them be free. वो आजाद हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम You में, demonic spirits, just keep quiet and leave them in Jesus' name. ये दुष्ट आत्माओं अपने मुंह बंद रखो और यीशु के नाम में उन्हें छोड़कर Honor चली them, जाओ। Lord. इन्हें आदर दें प्रभु। No more shame because of these evil powers. इन दुष्ट शक्तियों की वजह से उन्हें और शर्मिंदगी ना झेलनी Give पड़े। them honor and joy. उन्हें आदर और आनंद दे, Honor and joy. आदर और आनंद दे As God's children from today. आज से परमेश्वर के बच्चों के रूप Thank you में। for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद We प्रभु। love you, Jesus. मैं आपसे प्रेम करता हूँ Shall we यीशु। all clap our hands and give Jesus all the glory? हम सब ताली बजाकर यीशु को सारी महिमा दे। A great deliverance is coming upon everybody. एक महान छुटकारा सबके ऊपर उतर रहा Jesus है। is coming. यीशु अंदर आ चुका है। Keep on saying, ये कहते रहे, Jesus, यीशु you are in my heart. आप मेरे हृदय में हैं, You are in my heart. आप मेरे हृदय में हैं, You are in my heart. आप मेरे हृदय में हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। If you have received the Lord in your heart right now, call this number that's on the screen. अगर आपने अपने हृदय में अभी यीशु को ग्रहण किया है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। Somebody will pray with you, कोई आपके साथ प्रार्थना करेगा lead you into the path of righteousness. और आपको धार्मिकता की राह में आगे बढ़ाएगा। Or go to this website, या फिर इस वेबसाइट पर आप जाएं, or write a letter or an email to me, या एक पत्र या फिर मुझे एक ईमेल भेजें, or come to a prayer tower which is in your city. या आपके शहर में जो प्रेयर टावर है आप वहां आए। You can get the list of prayer towers from our website, jesuscalls.org. आप jesuscalls.org नामक हमारे वेबसाइट से हमारे प्रार्थना भवन की जानकारी पा सकते हैं। Or jesuscalls.com if you're in the United States. या अगर आप यूएसए में हैं तो jesuscalls.com पर आप ये पा सकते हैं। Yes, you're welcome to come to the prayer tower to be blessed. हाँ, प्रार्थना भवन में आशीषों के लिए आपका स्वागत है। Jesus will bless you. यीशु आपको आशीष God दे। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।